Hi everyone, how are you doing? Today I will not ask my usual question तैयारी कैसे चल रही है नीट की, क्योंकि आई होप अच्छी चल रही है. अगर नहीं चल रही है तो जितनी भी यहाँ पे टीचर्स लाइव हो रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं, प्लीज़ आई मीन वी आर गेटिंग लाइव, तो प्लीज़ उसे देखते रहिए एंड अपने सारे जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर कर लीजिए. ठीक है, हो गया आज की बात. तो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम अंजलि आहूजा, आपकी इंस्टा सॉल्वर. And today we are going to discuss very important topic which is pedigree analysis. सुबह से सब के सब मतलब लोग मजाक उड़ा रहे हैं that we are going to learn some animal food, but pedigree analysis, this is one very famous and very important topic for NEET exam. मतलब जो NCERT वाली बुक है ना, आई इवन आई हैव एडेड सम स्क्रीनशॉट इन दिस. वहाँ पे क्या है कि पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट दैट टॉपिक इज़ देयर. और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे आर नॉट गिवन, जस्ट 2 एग्जाम्पल आई सॉ. But this is very important topic, NEET point of view, and that's what we are going to learn. I think this topic is going to be very much useful for you. So time waste नहीं करते, let's start studying, guys. Hold on, guys. You can just see the next PPT here. So basically, guys, first of all, I have to start the story first from what is pedigree analysis. तो पेडिग्री एनालिसिस है क्या? पेडिग्री एनालिसिस में हम एक फैमिली ट्री के बारे में स्टडी करते हैं. मतलब वी जस्ट डिस्कस सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स और डिजीजेस दैट जस्ट हैपन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. देयर आर मेनी डिजीजेस, देयर आर मेनी थिंग्स वी जस्ट गेट ट्रांसफर्स. तो हम क्या करते हैं, एक फैमिली ट्री बना लेते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट पेडिग्री एनालिसिस. उस फैमिली ट्री के बारे में वी जस्ट रिसर्च एंड स्टडी इन अ बेटर वे. टिल द टाइम लेट मी जस्ट see your comments and then we just start. If you can see the definition, guys. Okay, so people are commenting, hi, hello ma'am, how are you? Yeah, I'm good. So pedigree analysis, this is a tabular representation of a family history by taking a particular disease or character into consideration. So guys, I think आपको पता चल गया आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. इस पेडिग्री एनालिसिस को पढ़ने के लिए बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं. वो कैसे होते हैं हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू. Okay, so guys, on the screen you see, hold on. Okay, so guys, on the screen you see that there are certain of the terminology, certain of the definitions. So that's what we will be learning first. Before we learn about the terminology, there are certain definitions that we have to discuss. So first definition that you see is genotype. First of all, I have to tell you what is genotype. Genotype, this is basically the genetic makeup. This is basically the genetic makeup. Okay, there is something wrong with it. Let me just change the pen, guys. Excuse me. Okay, so guys, genotype, this is the genetic makeup. Suppose I am telling you a condition where there is something which is capital T and small t. Suppose there is a condition which is capital T and small t. So basically, guys, this is a genetic makeup, that some organism is there which is having this, what do we say? This condition, capital T and small t, this is the genotype. But then there is one more thing written below it which is known as phenotype. Phenotype is known as physical appearance. Genotype is genetic makeup, phenotype is physical appearance. Suppose I am saying a person is having genetic makeup capital T, small t, that is the genotype. But this person is looking tall, that is a physical appearance, and that is phenotype. Now guys, there is one more definition which is the dominant allele. Hold on, let me just clear these things up for you guys first, then we start. Okay, so the next definition as you see is dominant allele. Guys, dominant allele is the one, as the name indicate, which is dominant, which is very much expressive. Dominant allele, I think you have learned in genetics, don't you? Allele means a pair of genes which are expressing certain characteristic. Yeah, they express what? They express what? Same characteristic but alternative form of it. Like capital T, small t I was writing, that is allele. But if I am writing it capital T only, that is a gene. So now guys, the next definition say dominant allele, it means the one that is expressing itself. I was writing capital T and small t
capital T and small t, guys, that is what? That is what? That is what? Please comment it in the chat box. Guys, please comment. What is the dominant allele here? I'm just waiting it in the comments. Okay, I think I have to be on camera and tell it again, guys. I mean, I'm just not getting any reply over this, but please concentrate and answer. Dominant allele here is capital T, which is expressing itself, and recessive is the one which is small t. Actually, recessive allele doesn't express itself. It does express itself in certain situation. What situation? As you see, there are two definitions, homozygous and heterozygous. Homozygous and heterozygous means when both of the allele pair, they are same, that's homozygous. Means either both are dominant or both are recessive. So I was saying recessive expresses itself. It used to express itself when this is homozygous condition, and that is homozygous condition, guys. Now, as you see, these two definitions, homozygous and heterozygous, means capital T and small t, that is a homozygous condition, but capital T, small t, that is heterozygous condition, when both of the allele pair are either same or different. So, if it is same, homozygous, different or heterozygous. Please remember these definitions. We are going to learn this terminology and we are going to use this terminology in upcoming topics. Is that clear, guys? Now, there is one more terminology is autosomal and sex-linked trait. Guys, in the genetics, we use the word trait for character. If I am saying sex-linked trait, it means that is present in sex chromosome, either X or Y chromosome. If I am saying autosomal trait, that means in the autosome. अभी यहाँ से मुझे ना एक चीज़ याद आ गई guys. Actually जो क्रोमोसोम होते हैं ये दो तरीके के होते हैं. एक होता है ऑटोसोम. Sorry guys, I think you might not be getting things in sequence. Hold on. Yeah, I think you can just see it. Okay guys, so as you see, sex-linked trait here and autosomal trait here, autosome and allosome. So I was saying, okay, so guys, I have to just do one thing. If you can excuse me just for 1 minute, so I'll be just back, okay? Thank you.
Hello. Hi guys. Okay, sorry to disturb you for just 2 minutes, but now we are on track and let's continue the topic that we were learning. So we were talking about this autosomal and sex-linked trait, and before that I was mentioning about the chromosome, and I told you that chromosome, they are basically of 2 types. So into each and every cell of the body, there are basically 2 types of chromosome. One is known as allosome and one is known as autosome. I mean, in human, if I tell you, see guys, there are 46 chromosomes, 23 pairs. Out of it, 44 plus either XX condition in female or 44 plus either XY condition in male. So guys, why I have mentioned this thing, this is hold on guys. Okay, so as you see guys, this allosome and autosome condition that you see, this allosome and autosome condition, this allosome basically they are the sex chromosome, and autosome, they are basically the non-sex chromosome. I mean, out of this 44 are the allosome, they are the 44, sorry, they are the autosome, and allosome, these are the sex chromosome. If I have told this oppositively, please remember it. So these are the sex chromosome. I think something is wrong today. I have to delete everything. And sorry if you're getting disturbed due to this. I'm just continuing. So I think these definitions are very much clear to you guys. Please reply in the chat box. Is it clear? Now moving further guys, I am going to tell you further of the definitions. Okay, so I have made this sheet blank. Reason being, on this, other than definition, I am going to tell you the symbols. Into the pedigree analysis guys, when we learn it, we always start it from the symbols. क्योंकि जब भी पेपर में पेडिग्री एनालिसिस आएगा वो सिंबल्स की फॉर्म में आएगा. लाइक देयर विल बी सर्टेन सिंबल एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई इट. कैसे? लेट्स स्टडी अबाउट इट. लाइक मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन आया, वहाँ पे एक सिंबल आया ऐसे, तो पेडिग्री एनालिसिस में ये जो सिंबल होता है दिस इज फॉर मेल, एंड अब इसके अंदर अगर कोई सिंबल आया सर्कल, इट मीन्स फीमेल. और अगर कोई सिंबल आया ऐसे, सो सॉरी दैट्स ऐसे, that is sex undetermined या फिर sex unknown. Okay, so guys then अगर अब एक और कंडीशन होती है, अगर मान लीजिए ये स्क्वायर और सर्कल है, ये फिल्ड है ऐसे ऐसे. सो हम पेडिग्री एनालिसिस में ये सिंबल किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है अफेक्टेड इंडिविजुअल को. अफेक्टेड मतलब अफेक्टेड एज इन कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक है. इस पेडिग्री एनालिसिस में हम सिर्फ डिजीज स्टडी नहीं करते हैं, कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर सकते हैं. फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वो कैरेक्टरिस्टिक कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं या फिर वो जो डिजीज है. तो दिस इज अफेक्टेड मेल एंड फीमेल. अच्छा, नाउ लेट मी टेल यू. अच्छा, सो समबडी इज मैसेजिंग, कुड यू प्लीज ब्रीफ आउट व्हाट ऑल इज डन. या सो बेसिकली वी आर लर्निंग अबाउट पेडिग्री एनालिसिस. उसमें हम फैमिली ट्री को स्टडी करते हैं कुछ सिंबल्स की फॉर्म में. तो अभी मैंने सिर्फ सिंबल्स बताना शुरू किए हैं गाइस कि ये सिंबल्स इंडिकेट करते हैं. सपोज कि ये वाला सिंबल है जो ये मेल को इंडिकेट करता है, ये वाला जो सिंबल है ये फीमेल को इंडिकेट करता है. होल्ड ऑन. या इट्स ओके, इट्स फाइन. थैंक यू. ओके, सो गाइस ये वाला सिंबल मेल को करता है और ये वाला फीमेल को. अगर ये सर्कल फिल्ड है तो दैट इज अफेक्टेड. ठीक है, यू कैन सी द स्क्रीन क्लियरली नाउ. ओके, सो बेसिकली गाइस अब इसके बाद क्या है, इसके बाद मैं आपको थोड़े से और सिंबल्स बता देती हूँ. सपोज इसका मतलब ये है कि दीज आर जेनेटिकली कनेक्टेड. ये सिंबल इंडिकेट करता है मैरिज. मतलब मान लीजिए कि ये मेल है, फीमेल है, हमने बीच में लाइन लगा दी तो दैट मीन्स अ मैरिज. इज दैट क्लियर टू यू गाइस? और मान लीजिए नेक्स्ट जनरेशन को शो करना है तो हम वर्टिकल लाइन लगाते हैं. वर्टिकल लाइन, नॉट विद द एरो, आई शुड नॉट यूज एरो, बट वर्टिकल लाइन लगा के हम नेक्स्ट जनरेशन इंडिकेट कर देते हैं कि सपोज कि इट इज़ अ मेल एंड फीमेल. ये लड़का लड़की की शादी हुई, उसका जो बेबी हुआ दैट इज ऑल्सो फीमेल. अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर बनाऊंगी तो दैट इज अ मेल. ठीक है गाइस, सो दीज आर सम ऑफ द वेरी कॉमन थिंग. तो आई थिंक दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू गाइस. प्लीज कमेंट, जल्दी से कमेंट कर दो. मैं आगे बढ़ रही हूँ, फिर मैं सब क्लियर कर रही हूँ. हो गया क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, अब ये जो सिंबल्स हैं ये है डिटेल में, पेडिग्री एनालिसिस के सिंबल्स डिटेल में.
ओके मैम, अफेक्टेड मतलब यहाँ पे किसी ने कमेंट किया है, अफेक्टेड मतलब, अफेक्टेड का मतलब होता है द वन विच इज अफेक्टेड बाय एनी डिजीज और हैविंग पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक दैट वी आर लर्निंग। मान लीजिए आप एक फैमिली ट्री स्टडी करें, मान लो आपके घर में आपकी बहुत सारी बड़ी लंबी चौड़ी फैमिली है, तो कोई भी हेयर कलर लगा लो या फिर कोई ऐसी डिजीज़ है आप स्टडी कर रहे हो, तो मान लो डायबिटीज़ है या कोई भी डिजीज़ है, तो आप फैमिली ट्री बना के कि देर आर जो क्या कहते हैं पेरेंट्स हैं, यहाँ से कहानी शुरू हुई, फिर उनके इतने बच्चे पैदा हुए, फिर वो उसको जेनेटिकली हम मतलब फ्लो चार्ट के फॉर्म में स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे ये है इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, तो अभी ये जो सिम्बल्स गाइस आप देख रहे हो ये है डिटेल सिम्बल। मैं साइड हो जाती हूँ, उसको ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज ऑल्सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। डू नॉट वरी, कुछ नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा है उसकी चिंता मत करो, मैं सब एक्सप्लेन करूंगी। देखो जैसे ये स्क्वायर है, मैंने आपको बताया था ये मेल है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ फीमेल है, ये मैंने बोला था सेक्स अननोन बता चुकी हूँ। उसके बाद अगर 2 मेल है तो ऐसे ही स्क्वायर बना के 2 मेल लिख दोगे, 2 फीमेल है तो सर्कल बना के 2 फीमेल। लिव्ड 1 डे मतलब बेबी जस्ट डाइड इन 1 डे। ओके, उसके बाद है प्रोबेंड मेल। प्रोबेंड मेल में क्या करना है, ऐसे स्क्वायर बना के नीचे एरो लगा देनी है, लाइक अ स्क्वायर, एंड नीचे ऐसे एरो लगा देनी है। अब प्रोबेंड का मतलब क्या होता है आप सोच रहे होगे। प्रोबेंड होता है जो फैमिली में जब हमने सबसे पहले मतलब फाउंडर टाइप का, फैमिली में जब हमने सबसे पहले से पढ़ना शुरू किया कि कोई भी डिजीज़ है, मैंने एक पर्टिकुलर पर्सन को उठाया और वहाँ से इसकी पढ़ाई शुरू करी, स्टडी की, नॉट अपने इसकी स्टडी करी उस जेनेटिक डिसऑर्डर या कुछ भी चीज़ की, तो दैट इज़ अ प्रोबेंड मेल कि यहाँ से हमने शुरू किया। ऐसे ही प्रोबेंड फीमेल भी होता है। और स्टिल बर्थ होता है, आपको पता ही है स्टिल बर्थ, द डेड बेबी दैट इज बोर्न। ठीक है गाइस, अच्छा लेट मी जस्ट क्लियर दिस अगेन। अच्छा, सो नेक्स्ट है डिजीज मेल, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस, डिजीज फीमेल एंड मिसकैरेज, मिसकैरेज एज इन बेबी वाज नॉट बोर्न। उसके बाद है अफेक्टेड मेल, अच्छा आई हैव मेंशन्ड इट, अफेक्टेड फीमेल, एंड देन प्रेगनेंसी, make a you know and just make it dotted affected by history, as in history मतलब कोई भी genetically history में फिर से appearance हो गया। अच्छा, so guys some people is commenting नहीं समझ आया, and proband क्या है, मैं 2 चीज़ें दोबारा बता देती हूँ। समझ क्या नहीं आया, right now I am teaching you symbols। हम पेडिग्री एनालिसिस को स्टडी कैसे करते हैं, उसको स्टडी करने के लिए सिंबॉलिक लैंग्वेज में हम उसे करते हैं, और उसके सिंबल्स मैं आपको बता रही हूँ। ये सिंबल्स लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, किसी ने कमेंट किया कि प्रोबेंड मतलब, आई रिपीट माई सेल्फ, प्रोबेंड मतलब कि मान लो मैं फैमिली ट्री पढ़ रही हूँ, तो उसमें वो पहला इंसान जो मैंने उठाया पढ़ने के लिए, कि मान लो मैंने अपनी फैमिली उठाई और शुरू किया दादा से, दादा दादी, तो ये प्रोबेंड मेल है, प्रोबेंड द फर्स्ट वन, द फाउंडर, जहाँ से मैंने शुरू किया। ठीक है, ओके सो गाइज इसके बाद है, आई थिंक यू जस्ट अंडरस्टूड इट, मैरिज मतलब आई हैव टोल्ड यू मेड अ लाइन, एंड एग्जामिन मेल मतलब अंडर स्टडीड, एग्जामिन फीमेल मतलब अंडर स्टडीड फीमेल, एंड कंसेंगुइनियस मैरिज, कंसेंगुइनियस मैरिज होती है कि जब मतलब सेम एंसेस्टर में शादी हो जाती है, मतलब रिलेटिव्स, कजन्स में ही बोल सकते हो, रिलेटिव्स में ही, जस्ट आपको डबल लाइन लगानी है, मैरिज में सिंगल और रिलेटिव वाली में डबल लाइन लगानी है। ठीक है गाइज, इज इट क्लियर गाइज, प्लीज कंफर्म कर दो, यहाँ तक क्लियर है सबको, जल्दी से। इज दैट क्लियर गाइस? I think I'm continuing, you should be. Okay, thank you, thank you. Yeah, hi, hello, hi everyone who is joining it now. Okay, so then fraternal twins and identical twins. Guys, I think आपने ये अपने lower grade में पढ़ा है, 8th class में भी है, what are fraternal twins and what are identical twins. Fraternal twins क्या होते हैं, जो होता है डाइजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक मतलब जहाँ 2 जाइगोट बनते हैं, 2 ओवा आए, 2 स्पर्म ने उसको फर्टिलाइज किया, तो डाइजाइगोटिक, दैट इज फ्रेटर्नल ट्विंस। तो फ्रेटर्नल ट्विंस दिखाने के लिए आपको ऐसे दिखाना है, मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन है, आपने इसमें कोई कनेक्शन नहीं दिखाया, और ये फ्रेटर्नल ट्विंस है, मतलब वो मेल है, ये फीमेल है। उसके बाद आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, मोनोजाइगोटिक, कि एक जाइगोट बना, बाद में वो स्प्लिट होके 2 ट्विंस बन गए उसके, तो दैट इज, तो मोनोजाइगोटिक में मेल दोनों और ये फीमेल दोनों। क्लियर गाइज, प्लीज कीप ऑन कमेंटिंग। उसके बाद नेक्स्ट है एक्स्ट्रा मैरिटल मेटिंग, मतलब विदाउट मैरिज, मतलब हिंदी में तो कुछ भी शब्द यूज़ करेंगे इसके लिए, बट विदाउट मैरिज व्हेन मेटिंग हैपन, सो दैट इज द एक्स्ट्रा मैरिटल मेटिंग। उसके बाद है डिवोर्स और सेपरेशन में आपको लाइन के ऊपर ऐसे डबल डायगोनल लाइन लगानी है, और उसके बाद नो चिल्ड्रन मतलब मैरिज एंड द नो चिल्ड्रन।
Clear, guys? Just comment now. I'm just waiting, and I am just giving you a minute again. I want you to take a screenshot and save it. It's really, really very important from NEET point of view. और किसी ने यहाँ पे पीछे कमेंट किया है डिसीज डिक्रीज मेल क्या होता है? ये डिक्रीज नहीं है, डिसीज है. डिसीज का मतलब जो अभी अभी डेड हुआ है, रिसेंटली डेड पर्सन. अच्छा, ये कितने मार्क्स में आता है? यू विल श्योरली गेट 2 क्वेश्चन हार्डली. आई मीन 1 to 2 क्वेश्चन पक्का यूर गोइंग 100%. तो 2 क्वेश्चन तो लेके चलो. और बाकी जेनेटिक्स का बोलूँ तो वहाँ पे 2 नहीं, मतलब मैं 10-12 आपको बोल दूँगी क्वेश्चन अगर मैं जेनेटिक्स का, तो इसको एज अ जेनेटिक्स का पार्ट समझ लो. ठीक है, क्लियर गाइस? अच्छा, उसके बाद एडॉप्टेड मेल में आपको जो स्क्वायर है, मतलब ऐसे स्क्वायर बनाना है, उसके अंदर ए लिखना है और ऐसे इसके ऊपर पैरेंथेसिस लगा देना है. दैट इज एडॉप्टेड मेल. मैं ऊपर का जो भी लिखा है सब क्लियर कर देती हूँ. एंड आई गेस एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइस. नाउ मूविंग फर्दर. प्लीज़ मेरे को कंफर्म करते जाओ सब क्लियर हो गया कि नहीं, क्योंकि हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है. आपको सिंबल्स याद रखने हैं, फिर धीरे धीरे और चीज़ें याद रखनी है, और उसी के बेसिस पे हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे आगे. ठीक है, क्लियर? गुड. सो गाइस, नाउ अब ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये है एनसीईआरटी का वो स्क्रीनशॉट जिसके बारे में बात कर रही थी. क्लियर हो ना हो मैं पढ़ देती हूँ, क्योंकि इसके बेसिस में आपको कुछ आइडिया देना चाहती हूँ. These disorders are transmitted to offspring on the same lines as we have studied in the principle of inheritance. छोड़ो इसको. The pattern of inheritance of such Mendelian disorder can traced in a family by pedigree analysis. कि इन्होंने पहले कुछ डिजीज के बारे में डिस्कस किया, मेंडेलियन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में, और फिर उन्होंने बोला कि देखो हम इसको पेडिग्री एनालिसिस से सर्च करते हैं. अच्छा, सो मोस्ट कॉमन एंड प्रीविलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर आर हीमोफीलिया, cystic fibrosis, sickle cell anemia, color blindness, phenylketonuria, and thalassemia. It is important to mention here that such Mendelian disorder may be dominant or recessive. मैंने ये क्यों स्क्रीनशॉट लिया? एक्चुअली आपका जो नीट का पेपर होता है उसमें मेनली इन्हीं डिजीजेस पे आता है क्वेश्चन. मैंने बोला था ना लास्ट क्लास में भी, एनसीईआरटी बहुत चालाक है, नाम मेंशन कर दिया, बस इसी पे क्वेश्चन आ सकता है. तो आई वॉन्ट टू मेंशन, ये इंपॉर्टेंट डिजीज़ है पेडिग्री एनालिसिस में, इसके ऊपर स्पेसिफिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना. उसके बाद डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी. डेफिनेशन हम कर चुके हैं, उसको पेडिग्री एनालिसिस में भी देखेंगे. अच्छा, नाम लिख दिया इन्होंने, समझाया है नहीं क्या है ये. हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं. ठीक है गाइस, सो आई एम मूविंग फर्दर नाउ. चलो लेट्स टॉक फर्दर. अब थोड़ा सा जेनेटिक्स में घुसते हैं, मतलब पेडिग्री एनालिसिस स्पेसिफिकली जेनेटिक्स का टॉपिक है हमारा. पेडिग्री कैन बी एनालाइज टू डिटरमाइन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर अ जेनेटिक डिजीज. कोई भी कैरेक्टरिस्टिक या जेनेटिक डिजीज कि वो कैसे गया. हमारे पास एक सिंबॉलिक फॉर्म में एक क्वेश्चन आएगा, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है कि हुआ क्या इसके अंदर. कैसे करेंगे, उसके थोड़े से क्लूज लर्न करते हैं. सबसे पहले वो जो डिजीज होगी या तो वो डोमिनेंट होगी या रिसेसिव होगी. तो डोमिनेंट, वेदर द डिजीज, मतलब डोमिनेंस होगी उसकी, कि वो डोमिनेंस या एक जेनरिक वर्ड है कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है. उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि लिंकेज क्या है, मतलब कैसे डिजीज लिंक्ड है, वो एक्स क्रोमोसोम से लिंक है या ऑटोसोम से लिंक है. तो बस यही क्वेश्चन में स्टडी करना है हमने. ठीक है गाइस, क्लियर? फटाफट से बता दो. हाय पीपल. चलो आगे बढ़ते हैं. अब देखो स्क्रीन पे एक अच्छी सी फोटो, ये है वो एग्जाम्पल जो आपके पेपर में आ सकता है. अब मैं आपको एग्जाम्पल डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि पेडिग्री एनालिसिस में किस तरीके से दिखाते हैं. जब हम पेडिग्री एनालिसिस करते हैं गाइस, इसको जनरेशन्स में दिखाते हैं. सबसे पहले ये है फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन. जो जनरेशन है उसे रोमन में लिखते हैं 1 2 3 4, और ये 1 2 है, ये मेंबर्स हैं. ये फर्स्ट मेंबर, ये 2 मेंबर, ये फर्स्ट. मान लो आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया कि थर्ड फोर्थ का कुछ भी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे. मतलब थर्ड का फोर्थ मेंबर, ये इसकी बात कर रहा है. इसमें ये है मेल, ये है फीमेल. अब इसमें दिखा है फीमेल अफेक्टेड है एंड दीज आर मैरिड. वर्टिकल के बाद इन्होंने सारे बच्चे दिखा दिए लाइन में, ये सारे बच्चे हैं इनके.
फिर उनके बाद इनकी मतलब ये सारे बच्चे नहीं है, सॉरी ये बीच वाले बच्चे हैं 4, इसकी शादी इससे हो गई, और क्या कहते हैं ये इसकी फर्दर फैमिली है, इसकी एज इन द सेम फैमिली, ओके इसकी शादी इससे हो गई, दीज आर मतलब हैविंग फर्दर फैमिली, इसकी शादी इससे हो गई फर्दर फैमिली, ठीक है। अब आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ गाइस, ये है पूरा जेनेटिक का एक एग्जाम्पल पेडिग्री एनालिसिस का। इसके अंदर आप देख रहे हो कि 5th मेंबर की शादी 6 से हो गई। जब भी आप पेडिग्री एनालिसिस पढ़ोगे ना, अगर कोई नया फैमिली मेंबर ऐड हो रहा है तो वो हमेशा अनअफेक्टेड होगा, आइदर मेल और फीमेल बोथ विल बी अनअफेक्टेड। इसका रीज़न क्या है, कोई भी डिजीज़ है अगर हम उसको पॉपुलेशन में काउंट करें तो वो बहुत कम होती है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि 2 लाख 3 लाख लोगों में एक बंदे को आता है, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो इसीलिए ये बंदा पॉपुलेशन में से उठ के आ रहा है, तो नया मेंबर ऐड हुआ अनअफेक्टेड, नया मेंबर ऐड हुआ अनअफेक्टेड। क्लियर गाइस? मैम प्लीज़ एक वीडियो बनाना जिसमें 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट, पक्का प्रॉमिस। थैंक यू फॉर गिविंग मी आइडियाज। क्लियर गाइस? प्लीज़ कंफर्म, अभी हम थोड़ा और टेक्निकल होने जा रहे हैं। इट लुक्स नाइस, ओके थैंक यू। चलो सो गाइस आगे बढ़ते हैं अब। तो अब क्या है की क्लूज, बहुत सारे अक्षर दिख रहे हैं, चिंता मत करो मैं सब पढ़ के बताऊंगी, सब आपको बताऊंगी, बहुत सारे क्लू मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ। अब हम पेडिग्री एनालिसिस का एग्जाम्पल कैसे आएगा पेपर में हमने देख लिया, हमने सिंबल्स देख ली कैसे आएंगे, अब उसको स्टडी कैसे करना है, थोड़े से क्लूज लर्न कर लेते हैं, वो टिप्स ट्रिक्स। तो पहला टिप, एन अफेक्टेड इंडिविजुअल कैन नॉट हैव एनी एलील ऑफ अ डोमिनेंट ट्रेट। मतलब अगर वो अनअफेक्टेड है और उसमें कोई भी डोमिनेंट ट्रेट का एलील नहीं होगा, इस लाइन को फिर से पढ़ो, एन अनअफेक्टेड इंडिविजुअल कैन नॉट हैव एनी एलील ऑफ अ डोमिनेंट ट्रेट। मतलब डोमिनेंट हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अगर कोई इंडिविजुअल अनअफेक्टेड है तो डोमिनेंट हो ही नहीं सकता उसमें, कॉमन सेंस समझ आ रहा है। सपोज कोई कंडीशन है एक्स एक्स, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये अनअफेक्टेड है, ये अनअफेक्टेड है, इसको कोई डिजीज नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर डोमिनेंट है ही नहीं। अगर होता तो ये एक्सप्रेस हो जाता है ना, तो ये अनअफेक्टेड है, कॉमन सेंस, ठीक है। अच्छा दूसरा, इंडिविजुअल मैरिंग इनटू द फैमिली आर अज्यूम्ड टू हैव नो डिजीज अलील्स। वही बात बोल दी ना कि वो पॉपुलेशन से उठ के आया है, कि अगर कोई घर परिवार में नया इंसान आ रहा है शादी करने के लिए तो उसको हम अनअफेक्टेड मानेंगे, क्योंकि वो पॉपुलेशन में एक ऐसा है जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि डिजीज होगी। दे विल नेवर बी अफेक्टेड एंड कैन नेवर बी कैरियर ऑफ अ रिसेसिव ट्रेट बिकॉज द ट्रेट इज रेयर इन द पॉपुलेशन। सेकेंड पॉइंट गाइस, क्लियर? somebody is commenting recessive, हाँ मतलब I didn't get the comment but recessive हाँ what, could you please elaborate it? अच्छा उसके बाद थर्ड क्लू है, an unaffected individual can be a carrier have one allele। मतलब कहने का ये है कि मान लो कोई इंडिविजुअल अनअफेक्टेड है, उसको डिजीज नहीं है, बट वो कैरियर तो हो सकता है ना, कि ये एक्स कंडीशन में मान लो इसमें कोई रिसेसिव कंडीशन है डिजीज की, इसको डिजीज नहीं है कि इसमें डोमिनेंट जीन नहीं है, बट ये कैरियर तो हो सकता है ना डिजीज का जिसमें रिसेसिव है, समझ गए? सो दैट्स अ थर्ड पॉइंट, बिकॉज द टू एलील ऑफ रिसेसिव ट्रेट आर रिक्वायर्ड फॉर एन इंडिविजुअल। अगर इसको डिजीज होना है तो दोनों को रिसेसिव होना पड़ेगा ना, सिंपल। अच्छा मैम 12th क्लास के लड़कों को कुछ इंपॉर्टेंट बताएं, मतलब यहाँ लड़कों को स्पेसिफिकली क्यों लिखा गया है भाई, इट इज़ फॉर एवरीवन। अच्छा आई वॉज सेइंग फर्स्ट रिसेसिव हो सकता है लेकिन डोमिनेंट नहीं, एक नंबर, बहुत बढ़िया, नाउ यू आर गेटिंग इट। अच्छा फोर्थ पॉइंट, व्हेन ए ट्रेट इज एक्स लिंक्ड अ सिंगल रिसेसिव एलील इज सफिशिएंट फॉर अ मेल टू बी एक्सप्रेस। ऑब्वियसली ना, मेल की कंडीशन होती है एक्स वाई। अब इसने बोला कि अगर मेल है तो अगर सिंगल जीन भी है, क्योंकि इसमें तो एक्स अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला है, इसको चाहे डोमिनेंट है चाहे रिसेसिव कुछ भी है तो वो तो एक्सप्रेस होगा ही होगा। तो अगर सेक्स लिंक डिजीज है तो दैट शुड बी विजिबल, दैट इज रिटन द फोर्थ पॉइंट। When a trait is X-linked, a single recessive allele is sufficient for a male to be affected because the male is hemizygous। अच्छा मैंने ये definition mention नहीं करी, इस hemizygous होता है when there is X and Y, मतलब ना तो इसमें X के 2 पेयर है ना Y के, तो that is hemizygous। homozygous, heterozygous and hemizygous is third condition। अच्छा fifth point guys, a father transmits his allele of a X-linked gene to his daughter but not his son। गाइज मैं आपको इंपॉर्टेंटली बोल रही हूँ, ये 5th पॉइंट लिख लो अभी के अभी, अगर आप नोटबुक लिख के बैठे हो तो। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि मान लो कोई फादर है एक्स वाई, ठीक है, अब ये नेक्स्ट जनरेशन में अपने मतलब जो जीन्स है ट्रांसफर करने वाला है, तो ये है अगर मेल है
तो मेल के अंदर तो वाई क्रोमोसोम जाएगा, मतलब एक्स तो कभी जाएगा ही नहीं। मेल नेवर ट्रांसफर मतलब एक्स क्रोमोसोम टू द मतलब मेल जो है उसका सन है, समझे, क्योंकि वाई ही जाएगा। बिकॉज हमने बचपन से पढ़ा है ओनली मेल इज रिस्पॉन्सिबल कि नेक्स्ट जनरेशन जो बेबी है वो लड़का होगा या लड़की होगी, बिकॉज दैट इज द वन विच इज गिविंग वाई क्रोमोसोम। हाँ, अगर लड़की है तो वहाँ पे एक्स क्रोमोसोम जा सकता है। तो दैट इज द फिफ्थ पॉइंट। क्लियर गाइस? नाउ अगेन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट इट डाउन। क्लियर गाइस? अगर आपको लग रहा है कि नीचे की लाइन नहीं दिख रही है तो मैं बोल चुकी हूँ, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। और वैसे भी ये हाईलाइटेड लाइन है लास्ट वाली, तो यू दैट वुड बी विजिबल। सो गाइस लेट्स प्रोसीड नाउ। मुझे ऐसे लग रहा है कि आज इस टॉपिक में बच्चों को ये लग रहा है कि व्हाट अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, आफ्टर मैम इज डन विद द वीडियो मैं ये वीडियो फिर से देखूंगा शुरू से या देखूंगी। प्लीज़ इसको अभी से ही समझना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है कि आपको बीच में आओगे और तुम्हें समझ नहीं आएगी। विल अंडरस्टैंड इट एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। चिंता मत करो, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा तो कुछ, आई एम मेकिंग इट विजिबल फॉर यू। हाँ, तो अब थोड़ा एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं गाइस। पैटर्न्स दैट इंडिकेट अ रिसेसिव ट्रेट। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने बोला था कि हम 3 कंडीशन मेनली पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे, 3 भी नहीं 4 एक्चुअली, वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ऑटोजोमल है या एक्स लिंक्ड है या सेक्स लिंक्ड है, ये 4 कंडीशन। जितने भी एग्जाम्पल आएंगे हमें बस यही आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि रिसेसिव ट्रेट है, ये तीनों के तीनों रिसेसिव है, बस हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिसेसिव है। तो पहला कंडीशन बता दो भाई मेरे को फटाफट से। टेल मी द फर्स्ट कंडीशन, प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश। या श्योर आई एम एक्सप्लेनिंग इट ऑलरेडी। Please explain guys, can you explain what this first condition is? I am telling you this is recessive one, it's just that you have to tell me whether it is autosomal recessive or X linked recessive. चलो मैंने आपको बता दिया ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, मुझे यही बता दो कि कैसे है। दिस कंडीशन इज ऑटोसोमल रिसेसिव, मतलब कहने का ये है ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट है और रिसेसिव है। इसका एक क्लू ये बता देती हूँ गाइस, ऑटोसोमल रिसेसिव पता लगाने की कॉमन सेंस, जब बोथ पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड और नेक्स्ट इंडिविजुअल अफेक्टेड है तो दैट इज पक्का ऑटोसोमल रिसेसिव। अभी इसमें भी ऐसा है, ये भी तो ऑटोसोमल रिसेसिव है ना। मैंने यहाँ पे रिसेसिव क्यों लिखा है सिर्फ दूसरी कंडीशन में, ये जो कंडीशन है दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव गाइस। इमेजिन ये कंडीशन है XX, ये है XY, ये फीमेल है ना, ये XY, इससे हमारा नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुई जो है XX, और ये है अफेक्टेड। अफेक्टेड है मतलब कि कोई कंडीशन होगी ना इसमें, सेम होंगे जो इसमें एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं। कॉमन सेंस की बात ये है गाइस, ये जो सेक्स क्रोमोसोम है ये इसको पता ही नहीं लगा रहे, हम पता नहीं लगा पा रहे कि सेक्स क्रोमोसोम से ये डिजीज हुई है कि नहीं हुई है। मैंने आपको एक जेनेटिक कंडीशन दी, मैं इसको क्लियर करके फिर से लिख देती हूँ गाइस, डू नॉट वरी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है। मैंने एक जेनेटिक कंडीशन दी कि ये XX है, ये XY है और ये हो गया अफेक्टेड, मतलब इसको तो अफेक्टेड हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ है इसके ऊपर, हमारे मेल फीमेल तो दोनों नॉर्मल है, इसके ऊपर कैसे आ गया? ऑब्वियसली सेक्स क्रोमोसोम में है ही नहीं है, दिस इज कमिंग फ्रॉम ऑटोसोम एंड दिस इज अ रिसेसिव डिसऑर्डर। जो होमोजाइगस हो गए, दोनों कैरियर थे ऑटोसोम के जो होमोजाइगस हो गए नेक्स्ट जनरेशन में और वो एक्सप्रेस हो गया। क्लियर गाइस? X linked, X affected, okay, so guys now there is next comment here one or next picture that you see here. So this is a condition where this is XX and this is XY. अब यहाँ पे XY कंडीशन आई और क्या कहते हैं इधर अफेक्टेड हो गया। अभी भी नहीं हमें पता चल रहा कि ये ऑटोसोम है या सेक्स लिंक्ड है। यहाँ पे दोनों प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं कि आइदर एक कैरियर था, ये फीमेल कैरियर थी और इसको ये डिजीज हो गई है ना, या फिर ऑटोसोम भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पेपर में कैन नॉट डिटरमाइन कि ये रिसेसिव तो है बट हमें नहीं पता कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या ऑटोसोमल रिसेसिव है, क्योंकि दोनों केसेस अप्लाई हो रहे हैं इस पे। वी आर एबल टू अप्लाई बोथ ऑफ द केसेस गाइस। क्लियर?
Okay, so the next one, third case. Please tell me the third case, guys. I'm just cleaning it up again. Here. So the third condition is X-linked recessive. अब ये कैसे है? मैंने आपको पहले ही बता दिया guys, ये जो condition है ये है X-linked recessive. अब मुझे बस ये बता दो कि कैसे है, मैं समझ लूंगी कि आपको सब समझ आ गया हम जो लर्न कर रहे हैं. Hi everyone. Yes, बच्चा, who is having doubt? What's your doubt? बस just tell me guys, I have written that this is X-linked recessive disease. मुझे बस ये बता दो कि कैसे है. और मैं आपको क्लू बता रही हूँ, जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो इसको XXXY की फॉर्म पे लिख के देख लिया करो, ऐसे करके. अब इसका जो नेक्स्ट जनरेशन आया उसकी इट हैज़ अ गर्ल, मतलब एक मदर एंड फादर है, दे गॉट मैरिड, उनकी लड़की है जो कि XX कंडीशन है, देन शी गॉट मैरिड. अब पॉपुलेशन में से आया नेक्स्ट इंडिविजुअल जो अनअफेक्टेड है, देन अब फिर से ये अफेक्टेड हो गया, तो कैसे? थिंक अबाउट इट. अच्छा, सो समबडी इज कमेंटिंग क्योंकि मेल में XY and X इज रिसेसिव, क्योंकि फीमेल प्रोड्यूस इजंट अफेक्टेड. अरे वाह. अब इसमें X लिंक्ड रिसेसिव कैसे है गाइस? देखो, अगर कोई कंडीशन रिसेसिव है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो XY कंडीशन होती है, जो XY कंडीशन होती है, इसमें चाहे डोमिनेंट और रिसेसिव कुछ भी हो, एक्सप्रेस हो जाता है. तो बस अब XY इसमें एक्सप्रेस हो रहा था, ऑब्वियसली लड़की के अंदर इसका X क्रोमोसोम जा सकता है, नेक्स्ट जनरेशन में ये X क्रोमोसोम यहाँ पे जा सकता है, तो इसमें लगा लिया कि एक अफेक्टेड है. अगर वो ये अफेक्टेड है, इसका मतलब ये कैरियर है, कैरियर ऑफ द डिजीज. और अब इसने नॉर्मल से करी शादी, तो देन मेल हुआ, तो वहाँ पे ये चीज़ एक्सप्रेस हो जाएगी. सो दिस इज X लिंक्ड रिसेसिव. क्लियर? प्लीज कंफर्म इफ इट इज क्लियर. आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट कैटेगरी नाउ. चलो आगे बढ़ते हैं. अब बहुत इजी है, इसको सिर्फ आपको थोड़ा सा सॉल्व करके देखना है. इट्स वेरी वेरी इजी. यप, सो आई वाज करेक्ट. ये हाँ, थैंक यू. ओके, सो गाइज नाउ, पहली वाली जो कंडीशन पढ़ी थी हमने डोमिनेंट, उसकी रिसेसिव की पढ़ी थी. अब हम पढ़ेंगे डोमिनेंट के बारे में. सो पैटर्न दैट इंडिकेटेड डोमिनेंट ट्रेट. तो अब ये सारी कंडीशन जो हैं, दीज ऑल आर डोमिनेंट. इट्स जस्ट दैट वी हैव टू लर्न कि ये कौन से वाली डोमिनेंट है. ठीक है, पहले हम डोमिनेंट का क्लू समझ लेते हैं. द डिजीज मस्ट बी डोमिनेंट इफ एवरी अफेक्टेड चाइल्ड ऑफ नॉन फाउंडिंग पेरेंट हैज एन अफेक्टेड पेरेंट. अब यहाँ पे नया शब्द आ गया, फाउंडिंग या नॉन फाउंडिंग. फाउंडिंग क्या होता है? वो प्रोबेंड. फाउंडिंग मतलब जब कहानी शुरू हुई थी सबसे स्टार्टिंग से, हमने इसे जब पढ़ना शुरू किया फ्रॉम द पेरेंट वन, जो सबसे पहले ही मतलब फैमिली ट्री का मेंबर था, दैट इज अ फाउंडिंग. समझे? नॉन फाउंडिंग मतलब उसकी नेक्स्ट जनरेशन, अगली जितनी भी जनरेशन है वो सब नेक्स्ट जनरेशन नॉन फाउंडिंग है. ठीक है. अच्छा, तो द डिजीज मस्ट बी डोमिनेंट कि हर इफ एवरी अफेक्टेड चाइल्ड ऑफ नॉन फाउंडिंग पेरेंट हैज एन अफेक्टेड पेरेंट. समझ आया? ये है नॉन फाउंडिंग, ये है नॉन फाउंडिंग, ये है फाउंडिंग. तो अब इसने बोला कि नॉन फाउंडिंग पेरेंट हैज एन अफेक्टेड पेरेंट, कि ये नॉन फाउंडिंग किड है और उसका अफेक्टेड पेरेंट है. ये नॉन फाउंडिंग है, इसका अफेक्टेड पेरेंट, तो ऑब्वियसली डोमिनेंट है. तो हम ये पेरेंट को छोड़ के नीचे वाले देखते हैं कि उनके माँ बाप बीमार है कि नहीं है तो मतलब डोमिनेंट है. ठीक है, बस अब मुझे ये बता दो कि ये कौन सी कंडीशन है. फास्ट फास्ट फास्ट, अपने दिमाग के दरवाजे खोलो गाइस. X लिंक्ड है, बहुत बढ़िया. मैम रिपीट प्लीज. हाँ बच्चा, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ डोमिनेंट के बारे में कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट होता है तो कैसे होता है. तो डोमिनेंट में सबसे पहले मैं आपको इसका एक और क्लू भी बताऊंगी अपकमिंग हमारी जो पिक्चर्स आने वाली हैं. लेकिन डोमिनेंट के लिए याद रखो कि हमने बस ये देखना है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके वन ऑफ द पेरेंट अफेक्टेड है कि नहीं है. मान लो एक पेरेंट है, फिर उसके बच्चे हुए और फिर उसके बच्चे हुए. सबसे नीचे वाले बच्चों को देखो कि उनके जो बीच वाली लाइन के बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वो सब अफेक्टेड है कि नहीं. अगर उनमें से सारे पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, मतलब दोनों पेरेंट्स में वन ऑफ द, दोनों पेरेंट में वन ऑफ द डोमिनेंट, X लिंक डोमिनेंट. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलो मैंने बता ही दिया. ये है ऑटोसोमल डोमिनेंट. X लिंक कैसे हो गया भाई? देखो,
ये है XY कंडीशन, ये है XY कंडीशन, ये है XX। इसके अंदर Y क्रोमोसोम तो यहाँ से आया और X क्रोमोसोम यहाँ से आया। जब इसके अंदर X क्रोमोसोम यहाँ से आया तो ये तो ठीक क्यों नहीं है? ये कॉमन सेंस लगाओ ना। इसके अंदर Y क्रोमोसोम यहाँ से आया और X यहाँ से आया। X तो नॉर्मल है हमारा, X को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये नॉर्मल क्यों नहीं है? तो इसका मतलब ये X लिंक्ड नहीं है, ये ऑटोसोमल है और ये डोमिनेंट है। क्लियर? बस थोड़ी सी कॉमन सेंस लगनी है इसके अंदर। फटाफट से बता दो भाई। क्लियर? टिल द टाइम मैं आप अगला बताती हूँ। कैन नॉट डिटरमाइन मैंने क्यों लिखा है? कैन नॉट डिटरमाइन मैंने इसलिए लिखा है कि ये डोमिनेंट तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, क्योंकि इसके अंदर देखो दिस कंडीशन, दिस इज XX, दिस इज XY। नेक्स्ट जनरेशन में XY को डिजीज है, लेट्स पुट अ लाइन हियर, XY को डिजीज है। Y क्रोमोसोम यहाँ से आ रहा है, Y क्रोमोसोम इज कमिंग फ्रॉम हियर एंड X फ्रॉम हियर। Y यहाँ से आ रहा है, X यहाँ से। अगर X यहाँ से आ रहा है, डिजीज हो गया, बिल्कुल हो गया, मान लिया मैंने। लेकिन फिर इसने एक XX से शादी करी। अगर इसका X, अब इसमें सिर्फ हमने ये माना कि इसके एक जीन के ऊपर डिजीज है, वो X लिंक्ड है। अगर ऐसा है तो इसके अंदर ये वाला जो है ये तो मतलब कैरियर होना चाहिए था ना, इसको डिजीज क्यों हुई? अगर हम इसको नॉर्मली करें, स्टडी करें, मैम इफ डिजीज इज डोमिनेंट, इफ डिजीज इज नॉट डोमिनेंट देन इट इज रिसेसिव। देयर आर टू कंडीशन ना। अब यहाँ पे डोमिनेंट है, हम डोमिनेंट कंडीशन पढ़ रहे हैं सिर्फ। मैं आपको एग्जाम्पल डोमिनेंट के दे रही हूँ। गाइस ये समझ आ गया कि पहले वाले में तो मैंने मान लिया एक्स लिंक्ड है, दूसरे वाले में तो कैरियर होना चाहिए था, बट इसको तो डिजीज हो गई। तो ना तो ये एक्स लिंक्ड है ना ये डिजीज है। वी कैन नॉट डिटरमाइन दैट। बोथ केसेस आर एप्लीकेबल हियर। जहाँ पे दोनों केसेस एप्लीकेबल हो जाए ना, ऑटोसोमल वाले भी एक्स लिंक्ड, मतलब कैन नॉट डिटरमाइन की कैटेगरी में डाल दो उसको। और MCQs आते हैं ऐसी मतलब एग्जाम्पल्स के ऊपर। ठीक है गाइस? क्लियर? चलो आई एम मूविंग फर्दर, लेट मी जस्ट क्लीन द स्क्रीन। अब मैं आपको थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन, क्या कहते हो? चलो लेट मी पुट क्वेश्चंस टू यू। टाइम टू प्रैक्टिस। इस डायग्राम को बहुत प्यार से देखो। आपको जो याद आता है मुझे देख के बता दो कि डायग्राम को देख के आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है इसमें, फटाफट से। जल्दी जल्दी बताओ। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, डू नॉट वरी। मतलब थोड़े क्लू बता देती हूँ। ये अफेक्टेड है, ये फीमेल है, एक जनरेशन में कुछ भी मतलब डिजीज नहीं हुई, अगली में फिर आ गई। हम एक जेनेटिक्स में ना फिनोमेना पढ़ते थे, उसे बोलते थे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। वन ऑफ द फिनोमेना तो हो गया क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, डन। और बताओ, आपको बस उसको देख के लिखना है। अभी MCQ नहीं प्रैक्टिस करें, अभी हम जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है और क्या क्या इसके अंदर फिनोमेना हो रहे हैं। ठीक है? फास्ट 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 गाइस, टेल मी व्हाट डू यू प्रिडिक्ट? कम ऑन। चलो एक तो मैंने बता दिया, दिस इज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और बताओ। आई थिंक थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। ये वीडियो दोबारा से देख लेना, मैं बताती हूँ अब इसमें क्या है। मैंने पहले ही बता दिया आपको। यह है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर, इट मेनली अफेक्ट द मेल, द जीन स्किप्स जनरेशन, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज सीन। लास्ट पॉइंट तो हो गया, जीन स्किप जनरेशन, सेक्स लिंक कैरेक्टरिस्टिक। गाइस एक क्लू मैं आपको बता रही हूँ, जब भी हम सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक और इन्हीं डिजीजेस के बारे में स्टडी करते हैं तो जनरेशन हमेशा स्किप होती ही होती हैं। एक जनरेशन में हुआ, एक स्किप हो गई, अगली जनरेशन में फिर से अपीयर हो गया। क्लियर कट आपका क्लू है, प्लीज इस लाइन को लिख लो। जब भी जनरेशन स्किप हो रही है तो मतलब सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, इट मेनली अफेक्ट द मेल। कि मतलब XY कंडीशन है, यहाँ पे XX कंडीशन है, इसके यहाँ पे मतलब 4 फैमिलीज हैं, कोई भी अफेक्टेड नहीं है। उसके बाद ये फीमेल प्रॉबेबली जो है ये कैरियर ऑफ द डिजीज़ है।
उसके बाद शी मैरिड अ मैन विच इज़ नॉर्मल। अब यहाँ से वाई क्रोमोसोम गया, यहाँ से एक्स क्रोमोसोम गया, सिंपल। ठीक है गाइस, क्लियर? मतलब सेकेंड जनरेशन में ऑल कैरियर्स, येस, नॉट ऑल ऑफ देम बट या, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स है इसको डिजीज़ है। अब एक्स क्रोमोसोम ने सारी, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जो होता है मेल का एक्स क्रोमोसोम डॉटर्स को जाता है, तो इसका डॉटर दिस इज और ये डॉटर, तो दोनों के दोनों जो है वो कैरियर है। मेल हमारे नॉर्मल होंगे क्योंकि मेल के ऊपर आ रहा है वाई क्रोमोसोम यहाँ से, और यहाँ से एक्स जो कि नॉर्मल है, इसका एक्स आ रहा है ना, ये एक्स तो नॉर्मल है, तो दोनों फीमेल जो हुई उस पर मेल का क्या कहते हैं एक्स गया, तो वो दोनों कैरियर है। तो सारे बच्चे नहीं होंगे, जितनी भी लड़कियां होंगी दे विल बी द कैरियर। क्लियर? फटाफट से बोलो क्लियर। बहुत इजी होता है, जब समझ आ जाता है तो बहुत इजी लगने लग जाता है। मुझे पता है गाइस कि थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, बहुत सारा दिमाग लगाने वाले है। बायो वाले वैसे ही कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, बस प्रैक्टिस करनी है। चलो दूसरा बताओ। अब देयर इज़ वन मोर एग्जाम्पल। इसको देखो, प्यार से देखो, जैसे देखना है देखो, प्यार से देखो, फिर बताओ क्या प्रिडिक्शंस है। एक क्लू तो क्लियर कट आपको दिख रहा है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। जल्दी जल्दी जल्दी। एक्चुअली क्या है गाइस, व्हाट आई एम फीलिंग, रिप्लाई थोड़े से लेट आ रहे हैं क्योंकि आपको प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है। जब तक आप प्रोसेस करते हो तब तक मैं थोड़ा आगे बढ़ जाती हूँ। आई नो दैट माइट हैपन, बट अब मुझे भी प्रोसीड करना है एंड आपको भी थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठना है और उसको सॉल्व करना है। तो आई वॉन्ट कि जस्ट लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू प्रैक्टिस। अगर गलत आंसर है इट्स ओके, जस्ट कमेंट, अगले में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताओ। मैम इसको एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी बोल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं। वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैटेगरी ही थी, दैट वाज एक्चुअली दैट कैटेगरी। एक्चुअली जहाँ पे सेक्स लिंक्ड हो ना, वहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों क्रोमोसोम होते हैं। हाय पीपल आर पुटिंग अप द मैसेज। चलो गाइस, टिल द टाइम यू सॉल्व इट लेट मी जस्ट गिव यू क्लू। सबसे पहले क्या है कि जनरेशन स्किप नहीं हो रही। मैंने क्या बताया था, सेक्स लिंक्ड में जनरेशन स्किप होती है, यहाँ पे हो रही है जनरेशन स्किप? तो नहीं हो रही। तो सबसे पहले तो क्लियर कट है, ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है ही नहीं है, दिस इज द ऑटोसोमल वन। क्योंकि जनरेशन स्किप नहीं हो रही, हमारी हर जनरेशन में आ रहा है, कॉमन सेंस। अब हमने देखना है ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। बस आपके इतना क्लू दे रही हूँ गाइस, डोमिनेंट एंड रिसेसिव है, यही बता दो। इज दिस डोमिनेंट, एक्स डोमिनेंट? अच्छा पीपल आर कमेंटिंग एक्स डोमिनेंट कैसे हो गया? ऑटोसोमल हो गया ना, जनरेशन स्किप नहीं हो रही। हाय पीपल हु आर नाउ ज्वाइनिंग। अब बताओ डोमिनेंट है ना ये रिसेसिव है? देखो यहाँ पे है एक्स एक्स, यहाँ पे है एक्स वाई, एक्सेस को कोई डिजीज़ है, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में इसके हो गए 1 2 3 4 5 बच्चे, उसके बाद ये एक्स एक्स है, ये डिजीज़ हो गई। एक बात बताओ, कुछ नहीं मत बताओ, पहले मैं लिख देती हूँ। किसी भी कैटेगरी को एनालिसिस करने का बेस्ट तरीका होता है उसके ऊपर एक्स एक्स वाई लिख देना। कॉमन सेंस की बात है गाइस। मैंने यहाँ पे 2 कंडीशन दी, एक ये वाली एक ये वाली। अगर मैं ये कंडीशन लेती हूँ कि दोनों के दोनों है, मतलब वो डोमिनेंट दोनों के दोनों है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि होमोजाइगस कंडीशन। ये दोनों के दोनों अगर नेक्स्ट जनरेशन पे जा रहे हैं तो हर एक को एक्स क्रोमोसोम जाने वाला है। अगर हर एक को एक्स क्रोमोसोम जाने वाला है तो हर एक को डिजीज होनी चाहिए ना, है ना? तो ये एक्स लिंक्ड तो है ही नहीं है, ये ऑटोसोमल है। मैं आपको इसी के तरीके से समझाना चाह रही हूँ। अब हमने देखना है डोमिनेंट है या रिसेसिव है। अगर ये डोमिनेंट है गाइस, तो ये चाहे होमोजाइगस कंडीशन में हो चाहे हेटेरोजाइगस में, दोनों में एक्सप्रेस होगा, बट ऐसा नहीं हो रहा। मैम इसका मतलब जनरेशन इज कैरियर, नेक्स्ट जनरेशन या ऑटोसोमल डोमिनेंट। अरे वाह नाइस, नाउ आई एम गेटिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम यू गाइस। एक्चुअली तुमने आइडिया लगा लिया कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, बहुत बढ़िया। अब मुझे दिख रहे हैं थोड़े फ्रूटफुल रिजल्ट। इट्स ओके पीपल इफ यू हैव जॉइंड समबडी सेइंग सॉरी फॉर बीइंग लेट। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है
क्योंकि चाहे अगर मैं इसमें ये कंडीशन ले लिया ना, जहाँ पे एक भी अफेक्टेड आ गया वहाँ पे ये डिजीज एक्सप्रेस कर जाएगी। मैंने एक्स के ऊपर यहाँ पे दिखाया, बट एक्चुअली आई शुड नॉट राइट हियर। यहाँ पे हम इसको किसी और तरीके से, क्योंकि ये ऑटोजोमल है ना, तो आपको एक्स वाई वर्ड यूज ही नहीं करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। वहाँ पे आप कुछ भी डिजीज, सपोज डिजीज है तो कैपिटल डी और स्मॉल डी वर्ड यूज कर लिया मैंने, तो ये जो है रिसेसिव है, जहाँ पे स्मॉल डी कंडीशन आई इट विल बी एक्सप्रेस्ड, सॉरी डोमिनेंट है, जहाँ पे कैपिटल डी एक भी कंडीशन आई, दिस इज द डोमिनेंट वन, जहाँ पे वन ऑफ द जीन विच इज डोमिनेंट इट विल बी एक्सप्रेस्ड। Is it clear, guys? Let me just clean the screen and let me just tell you the clues to learn it. It is an autosomal dominant characteristic. It affect male and female equally. कि हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 आए और उसमें से मेल और फीमेल दोनों को डिजीज हुई है। The gene expresses itself in each generation. Common sense कि इसमें हर जनरेशन में डोमिनेंट जो होता है उसमें हर जनरेशन, कॉमन सेंस लगाओ ना, हमें ये तो पता चल गया कि एक्स लिंक्ड नहीं है, ऑटोसोमल है, डोमिनेंट है तो हर जनरेशन में आएगा, सिंपल। क्लियर गाइस? गॉट इट मैम? गुड। नाउ गाइस लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब इसको देख के फटाफट से बताओ। फटाफट से, क्लियर क्लियर, नाइस। नाउ यू पीपल आर गेटिंग, पुटिंग द मैसेज दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। जस्ट टेल मी व्हाट दिस कंडीशन इज। सबसे पहले देखो जनरेशन स्किप हो रही है कि नहीं हो रही, जल्दी बताओ, देखो स्किप हो रही है कि नहीं हो रही, कैसे देखना जनरेशंस को? जनरेशन स्किप हो रही है, यहाँ की जनरेशन स्किप हो गई, उसके बाद नेक्स्ट में आया, यहाँ पे नहीं हुई लेकिन फिर नेक्स्ट में आया। वॉट दिस कंडीशन इज, कम ऑन मैम, आज क्लास 1 आवर की है, 1.5 घंटे की। हु इज कमेंटिंग हियर? जब तक क्वेश्चन हमारे कुछ थोड़े से क्वेश्चन रह गए गाइस प्रैक्टिस करने के लिए। चलो मैं खुद ही बता देती हूँ। इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर, द जीन स्किप्स जनरेशन। यहाँ पे जीन ने स्किप किया जनरेशन को, जहाँ पे भी ऑटोसोमल डिजीज आती है जनरेशन स्किप्स होती हैं, स्किप होती हैं, सॉरी। हाँ तो मतलब हो गया ऑटोसोमल। उसके बाद अब पता लगाना रिसेसिव है या वो है। अगर रिसेसिव है, रिसेसिव की एक कॉमन सेंस की बात बहुत पहले बताई थी, रिसेसिव पता कैसे लगाते हैं। रिसेसिव का तरीका होता है कि अनअफेक्टेड मेल, अनअफेक्टेड फीमेल, उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है अगर वो अफेक्टेड हो गई, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, तो मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, क्योंकि इनमें कोई जीन्स थे जो दोनों में प्रेजेंट थे, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में होमोजाइगस कंडीशन हो गई, ये दोनों कैरियर थे, नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हो गए। इसमें भी तो ऐसे हो रहा है, अफेक्टेड अफेक्टेड। इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें एक्स क्रोमोसोम है तो पोटेंट, इट्स लाइक सम अदर कंडीशन इज देयर। सो दिस इज autosomal recessive characteristic. Clear guys? Doubt clear ma'am? I wrote that but I don't know. Okay, what did you write? I mean if you can just put it again. Acha guys, so let me just clear it up. Let me just move to the next slide now. Let me show another question to you. This is practice question number 4. Generation skip हो रही है कि नहीं हो रही? देखो जल्दी से। ऑटोसोमल रिसेसिव ओनली आई रोट। अच्छा इट्स ओके बच्चा, इट्स ओके। जल्दी से बताओ, ये थोड़ा स्टोरी में ट्विस्ट है गाइस। वैसे तो मैं स्क्रीन पे आके बात करती हूँ बट आज मुझे आपको स्क्रीन दिखानी पड़ेगी, मैं अड़ गई आगे तो तुम्हें दिख नहीं पाएगा क्वेश्चन। हाय पीपल हु आर जॉइन, इट्स वाई लिंक्ड। अरे वाह, कोई तो हीरो एंटर हुआ है क्लास में जो बोल रहा है इट्स वाई लिंक्ड। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक दैट आई डिड नॉट टेल यू, देयर इज अ कंडीशन, एक्स वाई क्रोमोसोम का जो एक्स क्रोमोसोम है दैट इज एक्स, बट जो वाई क्रोमोसोम है उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं होलेंड्रिक कंडीशन, दैट्स होलेंड्रिक क्रोमोसोम। एक्चुअल में ये वाई लिंक्ड है, देख रहे हो सारे के सारे मेल अफेक्टेड है, क्लियरली वाई लिंक्ड डिजीज है गाइस, दिस इज होलेंड्रिक कंडीशन। हाय पीपल, it affect only male, the gene is transferred from father to son, father to son, father to son, father to both of the sons. Yay! Yeah, I'm happy with you and I am happy equally as you are. Chalo guys, let's proceed to the next question है,
व्हाट टाइप ऑफ, अच्छा ये आपका एमसीक्यू आ गया गाइस, ये आपके एमसीक्यू आपके नीट एग्जाम में आ जाते हैं, प्लीज सॉल्व इट, अच्छे से पढ़ लो. व्हाट टाइप ऑफ हेरिडिटी इज शोन इन द पेडिग्री. देख लो इसे प्यार से. एक्स सेक्स लिंक डोमिनेंट, सेक्स लिंक रिसेसिव, ऑटोसोमल नॉर्मल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव. जल्दी से. जल्दी से बताओ मुझे. कमेंट कमेंट कमेंट. हाय पीपल, प्लीज कमेंट गाइज. Option 2. Some people have commented option 2. अच्छा, other people, what do you want to say? सेक्स लिंक्ड. अच्छा देखो, पहली बात स्किप हो रही है जनरेशन, तो मतलब क्या है, डोमिनेंट तो नहीं है ये है रिसेसिव. जनरेशन स्किप हो रही है तो डोमिनेंट वाले तो हमने काट दिए ऑप्शन. अब बचा रिसेसिव में से वो ऑटोसोमल रिसेसिव है या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है. ऑटोसोमल में क्या होता था कि अनअफेक्टेड का एक अफेक्टेड निकल जाता था, लेकिन वो होमोजाइगस कंडीशन में. यहाँ पे तो एक्स वाई कंडीशन है, यहाँ अनअफेक्टेड से ये निकल रहा है, यहाँ अनअफेक्टेड से मतलब कोई है ही नहीं. ये हमारा प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे. अगर ये अनअफेक्टेड कैरियर है तो कोई तो एक्सप्रेस होना चाहिए था ना, तो मतलब ये ऑटोसोमल नहीं है. हाई गेटिंग माई पॉइंट? कि मान लो दिस इज एक्चुअली आंसर इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव. कि मतलब सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या है, दिस इज एक्स वाई कंडीशन, दिस इज एक्स एक्स. अब क्या हुआ, इसमें ये रिसेसिव कंडीशन है, मतलब शी इज कैरियर. नेक्स्ट जनरेशन में एक्स क्रोमोसोम आ गया फीमेल से, वाई वहाँ से आ गया, तो इसको डिजीज हो गई. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे ये एक्स नॉर्मल थी, इसकी फैमिली में कुछ भी नहीं हुआ. उसके बाद यहाँ पे ये फिर से कैरियर हो गया कि ये जो डॉटर थी शी वॉज अगेन कैरियर. इसने एक नॉर्मल मेल से शादी करी, तो वन ऑफ द केसेस वाई क्रोमोसोम यहाँ से आया, एक्स यहाँ से, तो क्लियरली दिस इज ये. अगेन आई गॉट इट राइट. नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस. मैनी पीपल आर कमेंटिंग टू. नाइस, वेरी गुड. अच्छा, अब आपको मैं अगला क्वेश्चन दिखाती हूँ. वैसे मुझे ये टॉपिक पढ़ा के ना आइडियाज़ भी लग रहे हैं कि मुझे नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ाना है. नेक्स्ट टॉपिक में मैं सोच रही हूँ आपको जेनेटिक डिसऑर्डर का टॉपिक ले लेती हूँ, क्योंकि इसमें भी मेंशन है, और जेनेटिक डिसऑर्डर एनसीईआरटी से थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे हम अच्छे से, ताकि क्लियर हो जाए. ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. हाय, 11th का ले लो कुछ प्लीज़. हाँ हाँ पक्का. अरे चिंता मत करो, बार बार तो सब लाइव हो रहे हैं यहाँ पे, तो सारे टॉपिक हो जाएंगे, चिंता मत करो. जो पढ़ना है मुझे बस मैसेज डाल देना. हाँ भाई, टिल द टाइम. व्हाट टाइप ऑफ हेरिडिटी इज शोन इन द पेडिग्री. जनरेशन स्किप हो रही है कि नहीं हो रही, बताओ कंडीशन. हाय मैम, आई कांट अंडरस्टैंड हिंदी, प्लीज कैन यू. या डियर, इट्स ओके, आई एम जस्ट स्पीकिंग इंग्लिश, डू नॉट वरी, जस्ट आंसर द
हेलो, प्लीज गाइस टेल मी द आंसर। जल्दी से बताओ यार, कितना टाइम ले लिया तुम्हें सॉल्व करने में, जल्दी जल्दी। अच्छा ये ऑप्शन 1 कमेंट इसी का किया हुआ है तुमने। देखो अब मैंने आपको इसमें आइडिया दिया जनरेशन स्किप हो रही है कि नहीं हो रही, जल्दी से बताओ। देखो अगर डोमिनेंट कंडीशन होती है तो हर जनरेशन में दिखती है, यहाँ पे हो रही है जनरेशन, ये देख रहे हो ये वाली जनरेशन स्किप कर गई, ये वाली 1 जनरेशन, उसके बाद देन इट इज बीइंग एक्सप्रेस, तो मतलब दिस इज नॉट डोमिनेंट कंडीशन, दिस इज रिसेसिव, तो डोमिनेंट को हम यहाँ पे कट कर देते हैं। अब मुझे बताओ ये रिसेसिव कौन सी है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव है गाइस, जल्दी से जल्दी से। दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। हाय पीपल, हाय हु आर मैसेजिंग मी अप। डियर दिस इज एक्चुअली सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्चुअली रिसेसिव कंडीशन है। इमेजिन दिस इज द कंडीशन हियर, रिसेसिव कंडीशन है, मतलब पहली बात तो मैंने यहाँ एक्स 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 वाई लिखा, आपको नहीं लिखना है, एक्चुअली मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, अदरवाइज दिस इज सेक्स लिंक या ऑटोसोमल, हमने इस पे स्टडी करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको एक्स एक्स वाई लिख के चलूँ तो ये मतलब सेक्स लिंक कैसे है, नेक्स्ट जनरेशन में ये एक्स एक्स फीमेल आ गई, इसको डिजीज हो गई, कॉमन सेंस की बात है, इस फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम मेल से आ रहा है और वाई सॉरी दूसरा एक्स क्रोमोसोम यहाँ से आ रहा है, तो इसको डिजीज क्यों हो गई। अगर वो एक्स लिंक डिसऑर्डर है तो वो तो डोमिनेंट ऐसा कुछ होना चाहिए ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है, और ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है ही नहीं, दिस इज ऑटोसोमल, दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन डियर, क्लियर गाइस। Hi people who are messaging me up and who are saying option 1, please note this is autosomal recessive disorder, clear? This video is paused and here it is coming out of range, guys, you can't see me, I'm here, clear? अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब एक और डाउट करते हैं, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग डाउट है, कुछ नहीं करना आपने, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है। टाइम टू प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7, कलर ब्लाइंडनेस, दिस इज रिसेसिव, एक्स क्रोमोसोम सेक्स लिंक डिसऑर्डर, मतलब इन्होंने पहले बता दिया कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो सेक्स लिंक डिसऑर्डर है जो कि रिसेसिव 1, क्रॉस दी पेरेंट्स टू फिगर आउट, उनको क्रॉस बनाना है अपने, विच परसेंटेज ऑफ दियर ऑफस्प्रिंग विल बी कलर ब्लाइंड, मुझे ये बताना है इस क्रॉस को बना के कि इन चारों में से कितने परसेंट जो ऑफस्प्रिंग है वो कलर ब्लाइंड होंगे, जल्दी से बताओ, मैं स्क्रीन के साइड पे हूँ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। हाय पीपल, somebody is messaging 50%, C 75%, ओके। अच्छा ये जो जिसने 75% बोला क्यों, किसने 50% बोला क्यों, कैन यू टेल मी द रीज़न। अब किसी ने 25% भी बोल दिया, वाई। हाय, अच्छा चलो अब तुम्हारी मतलब हेल्प के लिए थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ। ये हो गया कैपिटल एक्स इधर, मतलब स्मॉल बी, दिस इज होमोजाइगस कंडीशन, दिस इज एक्स वाई विद 1 कैपिटल बी, दिस इज एक्स वाई विद 1 स्मॉल बी, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ रही है ना। अब बताओ ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 25%। अब देखो, अब दोबारा से सुनो इस क्वेश्चन को, रिसेसिव डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, सबसे पहले तो हमने डोमिनेंट देखना ही नहीं है कैपिटल बी, हमने देखना है रिसेसिव स्मॉल बी। अब देखना है स्मॉल बी के कितने कैरेक्टरिस्टिक अपीयर हो रहे हैं, स्मॉल बी इसके अंदर नहीं हो रहा, इसके अंदर नहीं हो रहा क्योंकि डोमिनेंट आ गया, इन दोनों में हो रहा है, 4 में से 2 में हो रहा है, मतलब 50% हुआ ना, समझे कि नहीं समझे। अब किसी ने कमेंट किया 2 आउट ऑफ 4 आर एक्स भी, अरे वाह, कोज रिसेसिव है तो फीमेल एंड बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस, क्लियर। इज इट क्लियर गाइस।
चलो ठीक है, आई एम अच्छा, आई मीन आई एम क्लियरिंग इट अप. जस्ट कमेंट इफ इट इज क्लियर टू यू. गॉट इट? ओके, समबडी हैज मैसेज्ड. ओके गाइस, सो अब क्या कहते हैं, हमारा ऑलमोस्ट आज का टॉपिक खत्म हो गया. समझ में आया तो प्लीज़ इंस्टा सॉल्व पे पोस्ट कर देना. अभी मैं आऊँगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मंडे को. और आई एम पहले ही बता दिया, अभी के लिए मैं जेनेटिक डिसऑर्डर कर रही हूँ. प्लीज़ इंस्टा सॉल्व पे सजेशन दे देना, जो भी टॉपिक पढ़ना हो ये कमेंट में अभी लिख दो. और अब सारी कहानी खत्म हो चुकी है. एक लास्ट के कुछ क्लूज हैं जो मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है? ओके, आई गॉट इट राइट. हाय पीपल, प्लीज रिमेंबर, सिस्टिक फिब्रोसिस, सीकल सेल एनीमिया ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज होती हैं, ट्रेट्स होते हैं. हंटिंगटन डिजीज, मार्फन सिंड्रोम, दे आर ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड मैस्कुलर डिस्ट्रोफी, दे आर सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. गाइस स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. इसका रीज़न क्या है गाइस? इसका रीज़न ये है कि पेपर में अगर इन पे क्वेश्चन आ गया तो मैं चाहती हूँ कि आपको कैलकुलेशन लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, वहाँ बैठ के फालतू दिमाग लगा रहे हो. अगर डिजीज़ वहाँ पे मेंशन हो गया तो आपको पता है डिजीज़ कौन सी है. समझ गए? मैं मतलब मेरा कंसर्न ये है. तो आई जस्ट वांट कि आपको नेक्स्ट टाइम इतने ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाने पड़े. दूसरा, अगर आपको कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं आई हैं तो गाइस प्लीज़ अभी वीडियो जो है बाद में ये दोबारा से देख लेना, रिप्ले करके, और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेना. पेडिग्री एनालिसिस पे अगर आपको और भी डाउट्स हैं, फोटो क्लिक करो, इंस्टा सॉल्व पे डालो. और बाकी और भी ट्यूटर यहाँ आने वाले हैं, अपने अपने टॉपिक्स एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो इंस्टा सॉल्व पे जाओ, देखो, रजिस्टर करो और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ. अभी के लिए मैं तो जा रही हूँ. And I am going to prepare one more topic. I'll see you soon. Bye. Take care. Sayonara. Namaste. Thank you, Anjali Ahuja.